Hello student, today's topic is distance and displacement or speed or velocity. I am explain everything in details. I have taken the topic from Selena publication class 9 ICSE. Before I starting this video, first let's see the all slide which I discuss later. First the introduction, distance vs displacement. Then second, can you answer this question? It is the most very important questions. And actual definition of distance and their characteristics, actual definition of displacement and their characteristics, and one image which help us to clarify the difference between distance and displacement. And the next slide is comparison between distance and displacement, and then one important questions which are related to distance and displacement. Then next topic, what is speeds and is example of speed and their units. What is velocity, their units, and important speed vs velocity comparison I will discuss with you. And last but not least, we will discuss a summary all the topics. Okay, before starting this video, I want to explain important point. Okay, first, realize, have you ever wondered why a person can travel a long distance and still have zero displacement, or why speed and velocity are not exactly the same? I will discuss all these things later. First, imagine a runner completing one full lap around a circular track. The runner has covered a distance, but what about displacement? I will discuss. Then, these are some of the most interesting questions in physics. Today, we are going to explore four fundamental concepts of motions, which are distance, displacement, speed, and velocity. These concepts form the foundation of mechanics and help us understand how objects move in our everyday lives. By the end of these sessions, you will be able to clarify, differentiate between distance and displacement, understand the difference between speed and velocity, and solve related numerical problem with confidence. So let's begin our journey into the world of motions. I will explain all this topic including both the languages which you help us a better understanding. Getting my point? Now starting this video, first move a first slide which are only a introduction given us, that is displacement and speed and velocity. The physics concept that control every journey. This is simply written here, and the most important questions are, can you answer this? Can you answer? A student walk around a circular park and return to the starting point. I am taking both the language. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट जो है, फर्स्ट आई टेक द पेन, ब्लैक पेन, हाँ, ओके. What is written here? A student walk around a circular park and returns to the starting point. Can you explain distance and displacement? Let's suppose this point is A. The body moves there. The body moves through a circular loop. Okay, that means I am saying to you, this body moves around a circular park. Okay, what is the distance and what is the displacement? Before ending this lecture, you will be able to find all these questions. Okay, first go to the next slide. I will discuss that how to find a distance and displacement of a circular park. Okay, first, what is distance? So distance means what? The total length of the path traveled by an object. What I am saying to you, the total length of the path traveled by an object. That means what I am saying, trying to saying you, that the total path covered by an object. That means when the object start from a point and the goes to another point, which end of the point, the total length which he covered is called distance. Getting my point? रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस, जस्ट सी, जैसे आप घर से मार्केट जाते हैं, जैसे यहाँ पर घर से मार्केट गए और मार्केट से आप स्कूल गए, ठीक है, तो टोटल पाथ ट्रेवल मान लीजिए आपने कितना किया, 5 किलोमीटर किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो गया आपका क्या हो गया, 5 किलोमीटर. क्या हो गया, 5 किलोमीटर. ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आप क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे कि आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया. ठीक है,
तो ये आपका सिंपली क्या होता है, क्या होता है सिंपली कि टोटल लेंथ आपने कितना कवर किया, मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ को कवर किया। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ईस्ट की ओर गया, वेस्ट की ओर गया, नॉर्थ की ओर गया या साउथ की ओर है। चाहे आप सीधे जाओ या घूम कर जाओ, या डिस्टेंस बस पूरा रास्ता को काउंट करता है, ठीक है। जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग सर्कुलर मोशन में देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ को कवर करता है तो उसका जो टोटल लेंथ होता है, उसका जो टोटल सरकमफेरेंस होता है वो उसके डिस्टेंस के बराबर होता है। वो हम बाद में बता रहे हैं आपको, बट हम एक यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज किए थे कि आपको ये लेक्चर एंड होने तक ये इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बता रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ये सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस का, ठीक है। और इसका अगर ये तो समझ में आ गया, आपका घर से कोई मार्केट स्कूल के टोटल ये 5 किलोमीटर होते हैं। ये 5 किलोमीटर जो होगा ये आपका सिंपली क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो कोई भी पाथ, कहीं भी कैसा भी पाथ, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी पाथ, कोई फिक्स पाथ ना हो, अगर कवर किया है तो उसको हम लोग टोटल डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर हम लोग साइंस का टर्म में देखें तो उस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे डिपेंड करता है, वो आपका इसमें डिपेंड नहीं करता, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन इन द सेंस क्या बोलना चाहते हैं हम, कि वो उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, वो किधरों डायरेक्शन, मतलब उसका फिक्स डायरेक्शन, कहीं भी वो जिग जैग मोशन में वो ट्रैवल कर सकता है। देखिए सेकंड वाला आपका क्या बता रहा है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो कुछ ना कुछ पाथ को ट्रैवल करेगा तो ही हम उसको डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन एनी ऑब्जेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, if a person travel any distance called distance, if a person cannot move anywhere, it is stationary at a place, that is called rest, not a distance cover, okay. That means what I am saying to you, no direction is required, and scalar, this is a scalar quantity, that's always a positive, always positive। that means क्या, what, it's travel any distance, if any distance, that means what I am saying to you, अगर वो 1 मीटर भी ट्रैवल कर रहा है तो भी वो उसका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। तो अब अच्छा क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को दोनों में काफ़ी डाउट रहता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस, और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। तो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन ए, एंड दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन बी, ओके। सपोज वन पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मान लीजिए कोई ए से बी जाना चाहता है, और वो इधर आया, इस डायरेक्शन में पहले आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, और फिर इस डायरेक्शन में जाके वो बी तक पहुंचा, उसका डेस्टिनेशन पहुंचा, ठीक है। तो ये जो वो पाथ को कवर किया, ये जो पाथ को वो कवर किया, ये सिंपली क्या है, आपका डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस को कोई आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो बस ट्रैवल किया। मान लीजिए ये आपका 5 किलोमीटर था, मान लीजिए ये आपका 6-7 किलोमीटर था, मान लीजिए ये आपका 3 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, ठीक है। 5 किलोमीटर, 4 किलो, यूनिट भी देना जरूरी है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। 7 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, तो टोटल वो डिस्टेंस लेवल जो किया वो कितना किया आपका, यहाँ पर अगर हम बता दें तो 5 प्लस कितना आपका 7 प्लस कितना आपका 3 प्लस 4 प्लस 5, टोटल कितना हो गया, 7 5 12 12 3 15 15 19 91 24 किलोमीटर। ये जो 24 किलोमीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट इस केस में अगर बोला जाता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ का, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता तो कैसे फाइंड आउट करते, तो ये जो ए और बी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि हमको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है। तो आपको अगर ए से बी जाना है,
कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी जाना है, और आपको सबसे नियरेस्ट शॉर्टेस्ट जो रास्ता होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा जो कि 10 किलोमीटर है, वही है आपका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। और आपको जस्ट जब बोलना होगा कि जो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 10 किलोमीटर है, बट आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा उसका डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इस तरह उसका डायरेक्शन, अगर यहाँ से हम उसको डायरेक्शन में इंक्लूड करें, ठीक है, तो डायरेक्शन में अगर इंक्लूड करें तो ये आपका ईस्ट की ओर होगा। किधर होगा? ईस्ट की ओर, ठीक है, ईस्ट की ओर। तो ये आपका डायरेक्शन इंक्लूड होगा जो बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10 किलोमीटर है। तो सिंपली क्या बता रहे हैं, जो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जबकि अगर कोई पर्सन इधर यहाँ से यहाँ होके जाता तो वो डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, लेकिन कोई अगर पर्सन सीधा यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, ठीक है, जो कि कितना है यहाँ पे 10 किलोमीटर, बट विथ डायरेक्शन जो कि है ईस्ट की ओर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इन दोनों के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ नहीं देखता है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को देखता है, और उनके बीच के शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहता है, ठीक है। तो हम समझ गए, ये आपका इनिशियल पोजीशन था और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है आपका कौन, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? इन दोनों पर ही डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब डिपेंड करता है कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए बोला गया द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, इसको डिनोट कर रहे हैं आई से, और आपका ये जो हो गया ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, जिसको हम ऐप से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपको? तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो होम से स्कूल गए आप, तो शॉर्टेस्ट स्टार्टिंग डिस्टेंस आपका कितना, 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर है। तो देखिए ईस्ट जो आ रहा है ना, ये बता रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। किसको बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। तो उसको एस से डिनोट करते इसीलिए एस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 2 किलोमीटर ईस्ट। ये जो ईस्ट आया ना, ये वेरीफाई कर रहा है उसका डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को, ठीक है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों? ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग जो इसको लिखते हैं ना, एस के ऊपर में हम लोग एरो का साइन देते हैं। ये क्या दिखाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या दिखाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है आपको? ये वेक्टर क्वांटिटी दिखाता है। डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर ईस्ट हम लोग रिटर्न किए थे, राइट किए थे, 2 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ भी ईस्ट लिखे थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ये जीरो भी हो सकता है। क्या बोले हम? ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कैसे जीरो हो सकता है हम वो बताएंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है, ठीक है। ये कैसे जीरो हो सकता है, बस थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ठीक है, और फिर ये बी से ए आ जाता है, ठीक है, ये बी से इनिशियल पोजीशन, पहले ए से बी गया और फिर बी से वो ए पे आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपका इनिशियल पोजीशन जो था वो आपका फाइनल पोजीशन के बराबर हो गया, तब ये दोनों क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में आपका, जब दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। तो ये सबसे अच्छा आपका फिगर दिया हुआ, देखिए ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ए से बी सीधा जा रहा है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ऐसा जिगजैग मोशन में ट्रैवल करते हुए बी पे जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। हाँ, इन दोनों रुकिए, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव जीरो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बताएंगे इसके पीछे रीज़न क्या, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हम लोग देख लिए और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिजन भी कर लिए। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, जबकि इसको डायरेक्शन से होता है। हम लोग देखिए कि इसको हम लोग इट्स ईस्ट ईस्ट लिख रहे थे, कहीं भी जा रहे थे हम लोग ईस्ट लिख रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द वायरल सर्कल एग्जाम्पल, ये जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में, उसका हम लोग डिस्कस यहाँ पर करें, जो हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये जो सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, मान लीजिए यहाँ से ये मूव किया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से वो मूव किया,
ठीक है, और ये अपना फाइनल पोजीशन पे आ गया। तो ये स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन दोनों के लिए सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट देखिए, इसको पहले रेज करते हैं फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है, और लास्ट में यहीं पर आ गया, तो मतलब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम हो गया, तो मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, बट अगर इसका अगर यहाँ पर एस क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में अभी क्या हो गया, कोई चेंजेस नहीं रह गया। ठीक है, तो आपका दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गया। ठीक है, जिसलिए क्या हो गया, ये जीरो हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस बोला जाता, तो क्या हो जाता, तो हमको पता है सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये 2πr के इक्वल वो क्या करता, पाथ को कवर करता है। ठीक है, पाथ को ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये उसका हो जाता है क्या, आपका डिस्टेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, आ गया समझ में, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपका क्या हो गया, और है क्या सलाह, हाँ। अब व्हाट इज स्पीड, ये जो स्लाइड है ना, ये पूरा बेसिक स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बताएंगे, इसके बाद है ना, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्पीड को देख रहे हैं। व्हाट इज स्पीड अगर बोल दें तो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को भी इसी मतलब स्पीड और वेलोसिटी को भी इसी मतलब इसी लेक्चर में इंड करें, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करता है किस किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, अगर हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो स्पीड हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर टाइम बाय डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर गलत टाइपिंग कर हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअली जो स्पीड होता है ना, वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, किसका, स्पीड का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर भी होता है। ठीक है, तो अगर स्पीड एग्जांपल देखते हो, डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर दिया, तो स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर। फॉर्मूला में बैठा के देखिए, 120 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, और आपका टाइम कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये यूनिट किलोमीटर और ये आवर में दिया हुआ है। ठीक है, अब वो अलग डिफरेंस है कि हम लोग उसको यूनिट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, मीटर पर सेकंड में 18/5 से डिवाइड करते हैं किलोमीटर पर आवर जाने के लिए, और मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 15/8 से डिवाइड इनटू करते हैं। ठीक है, वो अलग फिनोमिना है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको किलोमीटर पर, जैसे मान लीजिए आपका 54 किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 54 इंटू हम लोग 5/18 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 18 3 जा 54, तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और इसी को अगर किलोमीटर पर आवर में जाते हैं मान लीजिए, तो इसको किससे डिवाइड करते हैं, 18/5 से, मतलब 18/5 से, तो 5 से कटेगा तो वो सेम वैल्यू आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 18 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये चीज़ अलग फिनोमिना है उसका कन्वर्जन यूनिट का, वो आप लोग बाद में देखिएगा। तो हम लोग देख लिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, वो उसका स्पीड होता है। ठीक है, हम लोग उसको देख लिए। फिर वेलोसिटी क्या होता है, वहाँ पर डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा आपका वेलोसिटी में, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। तो इसका यूनिट भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट, वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल फॉर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ भी गलती से यहाँ पर भी लिखा गया है, दिस टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्चुअली वेलोसिटी जो होगा वो होगा आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, ये वाला गलत है, टाइम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से। इंपॉर्टेंट क्या होगा, डायरेक्शन इज नेसेसरी, इसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन नेसेसरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं। ये स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रहता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन रिक्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे तीनों, मतलब क्यों तीनों होता है, मतलब रीज़न क्या होता है इसके पीछे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। समरी क्या, डिस्टेंस क्या देखें हम लोग, टोटल पाथ ट्रैवल को देखें। डिस्प्लेसमेंट क्या देखें, शॉर्टेज डिस्टेंस विद डायरेक्शन को देखें। स्पीड क्या देखें, डिस्टेंस बाय टाइम को देखें। वेलोसिटी क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को देखें। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है,
So thank you everyone for watching this video.